कस्टमर प्रेफरेंसेस, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर टेस्ट, इस सब के लिए कि मार्केट को सेगमेंटेशन किया। बहुत बड़ा मार्केट है, यू ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट मार्केट इज अ वेरी बिग, so it has been divided into smaller segment just to understand what the needs, similar needs, or what is the characteristics and behavior of the customers. Okay, that is called एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जूडियो शॉपिंग मॉल ले लेते हैं, कुछ जूडियो हुआ या फिर कुछ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हुआ, वो अगर वो एक ही लाइन में जूडियोज अपना बहुत बड़ा मार्केट अगर खोल देता, तो व्हाट विल हैपन, दे couldn't understand the characteristics, the features, the behavior, the taste, the preferences of the customers. That is why they had been divided. They are in different zone. The market has been divided into different zone, different area, different locations, different environment, just to understand the taste, preference, characteristics and behavior of the customer. तो सिंपल मीनिंग में अगर डिवाइड मीनिंग में समझे तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग द कस्टमर इनटू ग्रुप, dividing the customers into groups so that the business can target effectively. Customers को divide करना, groups को divide करना, so that what will happen, the marketing management can identify and target the customers preferences, taste, the characteristic features of the customers. Okay, this is called market segmentation. Next slide ma'am. Definition, तो फिलिप कॉटलर के हिसाब से सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस of dividing the market into different distinct groups of buyers who have different needs, different characteristics or different behavior according to Philip Kotler. शायद segmentation complete हो गया. Next slide. Now, what are the different types of segmentation? Geographic segmentation, based on location, based on country, based on state, based on city, and based on climate. This is called geographic locations. Then the next one is, what are the objectives of segmentation? What is the objective of the segmentations? Just to identify and target the customers. Okay, what will happen? It will going to improve the marketing strategies. इससे marketing strategies में improvement होगा. There will be an increase in the sales, there will be increase in the profit and better customer satisfactions they can get. That is why the main goal or the main aim or the main objective, whatever you say, of the segmentation is these: to target or identify the customer, marketing strategies को improve करना, sales को increase करना और customer satisfaction. The last but not the least, this is one of the most important, and please take it on a priority basis, that customer satisfaction is always at top. Okay, these are the objectives of segmentation. Next slide. Next है आपका targeting in market management. Targeting क्या होता है? It is the process of selecting the most suitable segments of the market and focusing marketing efforts on those specific group of customer. Target का मतलब क्या होता है? किसी specific customers को किसी स्पेसिफिक लोकेशंस में, किसी मार्केटिंग सेगमेंटेशंस में कस्टमर्स का प्रेफरेंस को टारगेट करना. दिस इज कॉल्ड टारगेट. टारगेट मींस फोकस्ड करना. एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जस्ट टू फोकस्ड ऑन दैट. दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग. ओके, नाउ सिंपल मीनिंग क्या है? जस्ट टू चूज द राइट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टू सेल द प्रोडक्ट. ये सबसे एक्चुअल अंडरलाइन कर लो ये बात. टारगेट का सिंपल मीनिंग है चूज द राइट कस्टमर्स टू सेल योर प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज नॉट एवरी कस्टमर्स आर मीन्स व्हाट यू कैन not every customers are not so much acceptable of any goods and product that are coming on the market. Okay, every customers has different taste, different level of different tastes. They have different choice, they have different preferences, characteristics different, and their pocket permit is also different. Their income is also very different. So you have to divide according to that. Okay, market cannot be focused on particular customers. Okay, it has to be divided into different segments, different group, just to identify the right customer for the right groups. Okay, कोई कस्टमर्स पैरागॉन का चप्पल पहनना, बाटा का चप्पल पहनना या फिर श्रीलेदर का चप्पल पहनना पसंद करते हैं.
कुछ ऐसा कस्टमर्स होते हैं जो दुकान में जाते हैं, अपना साइज बताते हैं, चप्पल लेके आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पुराना चप्पल को ही मतलब अगर सोल खत्म नहीं हुआ तो पुराना जो फीता है उस फट जाता है तो वहां से फिर सिलवा लेते हैं। तो तरह तरह के कस्टमर्स आपके शहर में, हमारे शहर में मौजूद है। तो हर एक के लिए श्रीलेदर, बाटा या फिर आपका जो भी दुकानें हैं उसके लिए, उनके लिए नहीं है। हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रेफरेंस, अलग अलग चॉइसेस है ना। बहुत जन ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं, बहुत जन लोकल को प्रेफरेंस देते हैं, और बहुत जन दोनों ब्रांड और लोकल को प्रेफरेंस देते हैं। और बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो पुराने को ही बार बार चेंज करके रिन्यू करके पहनते हैं, रेनोवेशन में वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सिंपल मीनिंग क्या होता है? जस्ट टू चूज द राइट कस्टमर टू सेल द प्रोडक्ट। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। डेफिनेशन देखो, फिर फिलिप कॉटलर ने क्या डेफिनेशन दिया है? टारगेट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। ठीक है, तो फिलिप कॉटलर का इन्होंने कहा है टारगेट का मतलब जस्ट टू इवेल्युएट ईच मार्केट एंड बेस्ड ऑन इवेल्युएशन सिलेक्ट वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर। बहुत बढ़िया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, सबसे पहले इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। इवेल्युएट द मार्केट। इवेल्युएशन के बाद आप सेगमेंटेशन में चले जाइए। मैम सर का शायद कॉल आया इसीलिए। सॉरी तन्मय, कुछ कॉल आ गया था सर की तरफ से, इसलिए मैंने किया है। हाँ ओके सर, चलो। नो। नाउ, तो टारगेट का मतलब मैंने समझा दिया कि टारगेट, अगर फिलिप कॉटलर ने बहुत अच्छी तरह से टारगेट को डिफाइन किया है। सबसे पहले इवेल्युएटिंग करो, उसके बाद मार्केट को सेगमेंट करो, एंड बेस्ड ऑन द सेगमेंट आप फिर एंटर करो। यू नीड टू एंटर अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशंस ऑफ द मार्केट, बिकॉज सेगमेंटेशन में ही कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का चॉइस, कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर का इनकम का पता चल जाता है। जब तक आप मार्केट को सेगमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट पेनिट्रेट इनटू द कस्टमर्स, टू द कस्टमर्स, नॉट इनटू द टुवर्ड्स द कस्टमर्स। तो सबसे पहले आपको पहला काम है इवेल्युएशन करना, दूसरा है मार्केट को सेगमेंटेशन करना है, उसके बाद आपको मार्केट पे दाखिल होना। देन ओनली यू आर केपेबल और देन ओनली यू कैन एबल टू सेल द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। मार्केट इतना खाने वाला बहुत बड़ा चीज है स्तन में। इतना खान मतलब ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, तब जाके आप दिलों पे राज कर सकते हो कस्टमर्स का। आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में जहां पर कई कई सालों से, कल मैंने एक एग्जांपल दिया ना बोरोलिन का, बोरोलिन का यस मैंने सर। एग्जांपल दिया, साइड बाय हाँ। साइड मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का भी एक एग्जांपल दिया। दोनों एग्जाम्पल अगर तुम दिमाग लगाओगे तो दोनों एग्जाम्पल तुमको पता चलेगा कि दोनों एकदम पीक पॉइंट पे था, दोनों एकदम पीक पे था। लेकिन आज भी बोरोलिन का क्रेज कम नहीं हुआ। आज भी विद्या बालन सेलिब्रिटीज उसको उनको ऐड करती है। अक्षय कुमार द बिग सेलिब्रिटी उनको उसको एडिंग करता है। प्रोडक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं। बोरोलिन का एलिन, बोरोलिन लिक्विड फॉर्म में आ गया, स्किन के लिए अच्छा है, घमोरियस के लिए अच्छा है। लॉट ऑफ बोरोलिन। आपका साबुन भी आया था लेकिन मार्केट में चला नहीं, उसको बंद कर दिया। बोरोलिन का पाउडर भी आया था, टेल्कम पाउडर्स, लेकिन वो मार्केट में उतना खास अपना छाप नहीं छोड़ पाया, जिसकी वजह से ये बंद हो गया। लेकिन वो क्रीम और बोरोलिन का ये जो है सुडोल, बोरोलिन का liquids, these all are the part of this, what you can say, beauty products. These all are beauty products। और तब से लेके अब तक वो मार्केट को रूल कर रहा है। वो अलग एक दर्जा बना लिया है, वो अलग एक प्रेफरेंसेस, चॉइस, एक अलग मार्केट, अलग सेगमेंट में चला गया है। आप ऐसा कोई दुकान नहीं है, सिर्फ
मेडिकल दुकान नहीं, ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आपको बोरोलिन नहीं मिलेगा, इतना बड़ा मार्केट है वो। वहीं पर कोल्ड ड्रिंक्स का आप देख लो, मैंने कहा था आपको कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, दे ऑल रूल द मार्केट बिफोर 2000, बिफोर इन 1994, 96, 98, continuously for 5 to 6 or 10 years. They continuously, not only the celebrities of India, the cricketers, the businessmen, the business tycoons, they all have done the advertising of promotions of this beverages, food, drink beverages. But what will happen finally? The market is there, but very few customers are there. Customers' choices and preferences has completely changed. मैंने कहा था ना कल कि मैंने जो एग्जाम्पल देता हूं ना वो लाइव एग्जाम्पल्स है, आप इस चीज को ये डिलीट नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, पहले के जमाने में घर में जब आप राशन लाने जाते थे हम लोग, हमने देखा खुद बैग में 1-2 लीटर का थम्सअप का बोतल घर में आता था, रेफ्रिजरेट करके रखा जाता था और गेस्ट आने से इसको दिया जाता था। बट नाउ द प्रोसेस इज कंप्लीटली चेंज। अब वो कोई नहीं लाता है, वेरी रेयर। Out of 100 customer, you can find only 10% of the customers who are doing or maintaining the same standard. Change हो गया। दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? टारगेट। ब्रोलिन का जो कंपनीज था, कैलकाटा बेस्ड कंपनी, उन्होंने पहले सेगमेंटेशन किया, एनालाइज किया, रीड किया, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5 साल का प्लानिंग करके नहीं चला, बहुत सालों का प्लानिंग करके चला, जिसकी वजह से आज तक वो सर्वाइव हो रहा है। ओके, लेकिन ये जो फूड एंड ब्रेवरेजेस है, ये प्लानिंग किया था, लेकिन ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लान किया था, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं किया, जिसकी वजह से शायद मार्केट डिसॉल्व की कगार पे ही है। अब वो नहीं है, अब वो अलग अलग कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, इवेल्युएशन ऑफ द मार्केट बिफोर इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवेल्युएशन करना बहुत बहुत जरूरी है, और वो भी प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना, तभी जाके आप कस्टमर्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हो। देन ओनली यू कैन पेनिट्रेट द मार्केट, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ स्टेप्स ऑफ टारगेटिंग, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टारगेटिंग के लिए स्टेप्स क्या है? टारगेट तो एक इजी वर्ड है, टारगेट कर लेते हैं, लेकिन उसका स्टेप्स क्या है? बहुत सुंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेल्युएटिंग द मार्केट सेगमेंट। सबसे पहले मार्केट को इवेल्युएट करना, उसके साथ एक और वर्ड लिखा है सेगमेंट। सिर्फ मार्केट मतलब बहुत बड़ा मार्केट, सेगमेंट डिवाइड कर देना है मार्केट सेगमेंट पे। आप कौन सेगमेंट में काम कर रहे हो, उस सेगमेंट में आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है, किस तरह का कस्टमर रहता है, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर देयर, व्हाट इज द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, उसके बाद व्हाट आर द प्रेफरेंसेस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कस्टमर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड you have to observe that basically what brands or what local brands they are preferring most, उसमें भी डिवाइड करना है। ऐसा कौन सा कस्टमर्स है, those who are looking for the brands, those who are going for the brands and all, and which are those customers who are not only looking for the brands, they are looking for the local also, local brands also. And whosoever customers are there, those who are looking for both, either for brands, if not, then they are going for the local one. They have to analyze the market first, and based on that you have to target. Okay, so this is called evaluation of the market. Evaluation करने के लिए सबसे पहले size, the growth, the profitability and the competition, ये चारों चीज देखना पड़ेगा। size of the market, the profit of the market and the competitions, competitor कौन कौन है बाजार में। उसके बाद then come select target market. What is the next? Now choose the most attractive segment. अलग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, एक क्लॉथ मतलब कपड़ा एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग सेगमेंट हो गया मार्केट का, फूड प्रोडक्ट अलग मार्केट हो गया, फूड एंड ब्रेवरेजेस अलग मार्केट हो गया, ग्रोसरीज एक अलग मार्केट हो गया, साबुन, तेल, क्लिप, शैम्पू, पिन, आलपिन, सुई से लेके एरोप्लेन के पार्ट्स तक डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स आर देयर। अब आपको चूज करना है विच इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट्स देयर। जैसे कल तुमने कहा था, यस्टरडे इन माय क्लास यू हैव टोल्ड मी, सर सबसे बढ़िया है फूड। क्यों? फूड में सबसे ज्यादा किसी भी मतलब कस्टमर्स का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। और कल तुमने शायद कोई एक जगह का नाम भी बोला था, सर वहां वेज फूड है
जहां पर घर जैसे ही खाना बनता है लेकिन घर में स्वाद नहीं लगता, लेकिन वहां खाने में स्वाद लगता है। दिस इज द टारगेट। आपने टारगेट कर लिया, सर अगर करना है तो फूड एंड बेवरेजेस को लेके मैं काम करूंगा। दिस इज द सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा किस सेगमेंट में मुझे जाना है। नेक्स्ट है डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी। उसके बाद यू नीड टू डिजाइन द प्रोडक्ट, you need to go for the promotion of the product for the selected group। अब रेस्पेक्टिव सिलेक्टेड सेगमेंट जो आपने चूज किया है मार्केट, अब अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रमोशंस, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट उसमें काम करना है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। अच्छा वो तो हो गया, तब 3 तरह का टारगेटिंग है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। व्हाट इज दिस अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग? मतलब ओनली सिंपल मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट फॉर एंटायर मार्केट। एक ही प्रोडक्ट पूरा एंटायर मार्केट को पकड़ा हुआ है, दैट इज मोनोपोली टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। डिफरेंशिएटेड मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड मार्केट, मींस कंसंट्रेटेड मीन फोकस ऑन ए सिंगल स्पेसिफिक सेगमेंट, किसी सिंगल स्पेसिफिक सेगमेंट में फोकस करना। लास्ट है माइक्रो मार्केटिंग। व्हाट इज द मार्को मार्केटिंग? जस्ट कस्टमाइज द मार्केटिंग फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर लोकल एरियाज। कस्टमाइज करना इंडिविजुअल्स और लोकल एरियाज में। ये सब ज्यादा कस्टमाइजेशन जो होता है ना, वो लोकल एरियाज में ही होता है। गांव देहात एरिया, नॉन मेट्रो सिटीज, नॉन मेट्रो टाउन्स एंड ऑल, वहां पर जाके ना आप देखिएगा कस्टमाइजेशन ज्यादा है। उस एरियाज को माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। माइक्रो मार्केटिंग मतलब क्या है? लोकल ज्यादा रहेगा, ब्रांड्स थोड़ा कम रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ target strategies. Number 1 is undifferentiated marketing. Number 2 is differentiated marketing. Number 3 is concentrated marketing. Number 4 is micro marketing. हो गया? Next, टाइप्स ऑफ टारगेट। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग। टारगेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प फोकस ऑन मार्केटिंग एफर्ट, सेव टाइम एंड कॉस्ट, इंक्रीज सेल्स इफेक्टिवनेस, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले फोकस ऑन मार्केटिंग एफर्ट, दूसरा है सेव टाइम एंड कॉस्ट, इंक्रीज सेल्स इफेक्टिवनेस, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वेरी सिंपल है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। नेक्स्ट, पोजीशनिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज पोजीशनिंग? Positioning is the process of creating a clear and distinct image of a product or brand in the minds of customer compared to competitors। ठीक है? पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग एक प्रोसेस है just to create a clear and very distinct image of a product or brand in the mind of customer compared to competitors। ठीक है? पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां पर एक क्लियर और एक सेट इमेज कस्टमर के माइंड में बिठा दिया जाता है एक प्रोडक्ट को लेके और एक ब्रांड को लेके। और जानते हो, वो ब्रांड और प्रोडक्ट जब दिमाग में बैठ जाता है ना, तो कस्टमर्स फिर ना दुकान में जाके वही प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तन्मय, देखो इसका एक रेलिवेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अभी तुम टीवी में अगर एड देखोगे, अभी एड का प्रेफरेंसेस और एड का जो कंटेंट्स है बहुत हद तक चेंज हो गया है। आप देखिएगा बहुत हद तक चेंज हो गया। अभी टूथपेस्ट, डाबर च्यवनप्राश, चॉकलेट, केक, बिस्किट, इसका एड तुम देखते हो? पहले बताओ तन्मय, टीवी में अभी दिखाई देता है? सर बहुत कम हो गया, दिखता है लेकिन कम हो गया। बहुत कम हो गया। हाँ। क्यों जानते हो? इसलिए कम हो गया कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस को लेके कस्टमर्स की इमेज में, परसेप्शन में बात ऐसा बिठा दिया गया है कि आप जितना भी इस प्रोडक्ट के ब्रांडिंग और इमेज को लेके बात करें, कस्टमर्स क्या करेंगे? वही ब्रांड को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू द पेप्सोडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ पेप्सोडेंट, ओ माई गुडनेस, मतलब every 3 seconds or every 3 minutes onward, any celebrity
द कमिंग एंड प्रमोटिंग द पेप्सोडेंट। मतलब कोई अगर पिक्चर देखते थे तो गुस्सा हो जाता था, क्यों? एक पिक्चर अगर 10 मिनट चला तो 15 मिनट का एड रहता था, और उस 15 मिनट में आप रिपीटेशंस देखिएगा कि पेप्सोडेंट हुआ या किसी भी फूड प्रोडक्ट्स हुआ, ब्रिटानिया हुआ, ऐसे कुछ कुछ मैं नामचीन प्रोडक्ट आपको बता सकता हूं जिसको बार बार प्रमोट किया जाता है। सौरभ गांगुली बार बार किसी भी पेस्ट, मुझे अभी तक याद है, किसी भी पेप्सोडेंट का ऐड करता था और बार बार रिपीटेडली दे आर कमिंग ऑन एवरी ऑल्टरनेट। 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट के ऐड, उसमें से 6 से 7 बार पेप्सोडेंट का ऐड दिखाया जाता है। जानते हो क्यों? कस्टमर्स के दिमाग में एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट कर देना, और कस्टमर अगर बाजार जाएगा, दुकान जाएगा, तो बहुत सारे पेस्ट है, उसी में से वो बोलेगा मुझे पेप्सोडेंट दीजिए। ना कि वो कॉलगेट लेगा, ना कॉलगेट वेद शक्ति लेगा, ना प्रॉमिस लेगा, ना कुछ क्लोजअप लेगा, ना कुछ नहीं, पेप्सोडेंट। लेकिन अभी देखो वो सब चीजें बहुत हद तक चेंज हो गया है। अभी एडवर्टाइजमेंट आता है लेकिन बहुत कम दूसरे तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट का चीज जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गया। पहले एडवर्टाइजिंग को एडवर्टाइज करने के लिए फीमेल लेडी, एनी गर्ल यूज किया जाता है। अभी आप गर्ल या फीमेल का जो वर्चस्व उसको बहुत कम देखिएगा, दिखाया जाएगा, बहुत कम दिखाया गया, क्योंकि पता चल गया है कि कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, अब मैं कस्टमर्स के दिमाग में एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट नहीं कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज फाइनली कस्टमर्स कम टू नो दैट whatever the images are been showing, that all are fake images. लक्स साबुन का इतना क्रेज था तन्मय, आप जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे पता नहीं, इतना उसका सेलिंग बढ़ गया था, माय गुडनेस, यू कांट इमेजिन। उसका टर्नओवर शायद करोड़ों में हो गया था। ऐश्वर्या राय से लेके फॉरेन सेलिब्रिटीज तक दे आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन अ लक्स। डव, लॉट ऑफ सोप्स आर देयर, डेली सोप्स आर देयर, और जब भी वो डेली सोप का एडवर्टाइजिंग आता था उसमें सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसमें खा लेता था। इन द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत तब तो क्रेज था। उस समय में रामायण अगर 10 मिनट दिखाया जाता है, 15 मिनट का एड दिखाया जाता था, जिसमें से ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा था। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर कंप्लीटली चेंज हो गया। अब कितने घर में लक्स साबुन आता है आप खुद पता कर लीजिए। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग पोजीशनिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको कस्टमर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन द एनालाइज यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, तब जाके आप मार्केट में अपना पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज आप डिसॉल्व हो जाओगे। एवरी डे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहा है और एवरी डे मार्केट में लॉस हो जा रहा है। कितना सारा साबुन था, हमाम साबुन, मेडिमिक्स सोप, मैं कितना नाम दूं, गोदरेज नंबर 1, लिरिल, सिंथॉल, ये सब मैंने साबुन का नाम बता रहा हूं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, अब कहाँ वो नाम है, कितने वो शैम्पू साबुन यूज करते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, पोजीशनिंग का समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू पोजीशनिंग? यस सर। जब आप करना, एक बात पता ना, एमबीए का जो क्योंकि हमारे मैं एमबीए पढ़ा भी रहा हूँ और क्लास में भी एमबीए लेता हूँ, पेपर लेता हूँ। तो जब कंपनीज आते हैं तो जानते हो कंपनीज आपसे जब सवाल करते हैं ना, तो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते, व्हाट इज कॉल्ड टारगेट, व्हाट इज पोजीशनिंग। वो एक सिचुएशन आपको दे देते हैं, दिस इज द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव टू आंसर। एमबीएस का जो इंटरव्यू होता है, स्पेशली एचआर राउंड, मैं आपको बता रहा हूं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रेलेवेंटली आस्क, एंड इफ यू गिव द सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स ना, तब वो आपको पता चलेगा कि ये बंदा मार्केट वाला बंदा है, ये मार्केट के बेस को जानता है। बेस्ड ऑन दैट यू विल गोइंग टू गेट क्रेडिट्स, आपको नंबर मिलेंगे। पोजीशनिंग क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है, आप सिंपल डेफिनेशन बता दिए, जैसे ही आप बताए ना, आपको बोलेगा इसका एक एग्जांपल दे दीजिए, कैन यू एग्जांपल, कैन यू प्रूव इट, और कैन यू एक्सप्लेन इट इलैबोरेटली। तब आपको ये जो मैं करंट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग रिलेटेड, ये सब आप बताइएगा। एंड आई क्लियर? और एमबीए का पेपर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इलैबोरेट, एलुसिडेट,
एक्सेस, एक्सप्लेन, ये सब क्वेश्चंस ज्यादा रहता है। आप जितने अच्छे रेफरेंस के साथ, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ अपना आंसर को प्रेजेंट कीजिएगा, द मोर मार्क्स यू विल गोइंग टू गेट। क्लियर है? द मोर मार्क्स यू विल गोइंग टू गेट। सर एक एक बात क्वेश्चन हमेशा, था। हाँ अभी जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू के दौरान इस तरह का सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए कि जैसे जो इंटरव्यूअर है वो अगर पूछते हैं पोजीशन के बारे में, तो मैं उनको डेफिनेशन के जगह में उस पोजीशन का जो अगर प्रॉपर एग्जांपल है वो दूं तो भी उन लोग एक्सेप्टेबल करते हैं। मैक्सिमम एचआर राउंड में ये देखा गया है। आई एम नॉट टॉकिंग एक्सक्यूजेस और या क्या बोलो ऑफ बीट कुछ है, लेकिन मैक्सिमम आउट ऑफ 100% मैंने 75% देखा है, द एचआर नेवर गोइंग टू आस्क यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशनिंग, what is called segmentation, what is marketing management. They never ever going to ask you such example. Because when you are going for the interviews now, your field experiences, आपका इंटर्नशिप अगर है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका केस स्टडीज है, केस स्टडीज इज रेलिवेंट टू आपका फील्ड वर्क ही है। केस स्टडीज अगर मिलता है आप लोगों को, एमबीए में केस स्टडीज है, पिछले इसमें मैंने करवाया था। आपका अगर केस स्टडीज है तो केस स्टडीज मतलब क्या, फील्ड वर्क सबसे ज्यादा है। केस स्टडीज का जो एग्जाम्पल होता है वो फील्ड रिलेटेड होता है, तो आपको उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मार्केट में पोजीशनिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशनिंग इन द मार्केट, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे इसका आंसर आप दीजिएगा कि पोजीशनिंग क्या होता है, पोजीशनिंग मींस होता है जस्ट टू पुट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर। आप इतना ही बोल दिए ना, ना पूरेगा कैन यू प्रूव इट, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इट, तब आपको ये सब एग्जांपल देना पड़ेगा। दिस इज द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चन। माय पॉइंट इज दे नेवर एवर गोइंग टू आस्क यू, मैक्सिमम एचआर नेवर आस्क यू द स्ट्रेट क्वेश्चंस, व्हाट इज पोजीशनिंग, what is called market segmentation, what is market management, what are the different types of marketing management। ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में आए, लेकिन एक एचआर जो होता है फील्ड एक्सपीरियंस ज्यादा लेता है, क्योंकि आपका केस स्टडीज है, एमबीए में केस स्टडीज बहुत है। तो केस स्टडीज अगर आप करते हो तो केस स्टडीज का मतलब होता है फील्ड में निकल के काम किए, तब जाके आप केस स्टडी बना पा रहे हो। ठीक है, तो आपको केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि पोजीशनिंग का मतलब क्या है मार्केट में, ठीक है, आप बताइए, आप बता दिए, अब बोले कैन यू प्रूव इट, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ इट, तब आपको ये सब एग्जांपल देना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। और कोई सवाल? नहीं सर। बस हो गया? हाँ हाँ सर, अभी एक सवाल आया था तो मैंने आपसे पूछ लिया। ये इसलिए जब आप लोग का केस स्टडी आएगा, मैम देगी आप लोग का केस स्टडीज आएगा, केस स्टडीज करने के लिए आप लोग का आएगा, है केस स्टडीज, तो बड़ी मेहनत से केस स्टडीज कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। अगर मैं मुझे दिया मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू डू अ केस स्टडीज, हाउ टू फाइंड आउट अ केस स्टडीज। ठीक है, तो करना है आप ज्यादा से ज्यादा ना, थोड़ा सा इसमें पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा जब एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो ना, तो थोड़ा सा इसको प्लानिंग करो। मार्केट में जब निकलते हो ना, ये सब चीज को ऑब्जर्व किया करो, ये सब चीज को देखा करो, ऑब्जर्व किया करो। एकदम मतलब क्या मैं बोलूं, एकदम रेलिवेंट फील्ड, मतलब एकदम करंट फील्ड एक्सपीरियंसेस आपको जरूरत है एमबीए में। ठीक है, बुकिश नॉलेज इज नॉट फॉर एमबीए, आई एम टेलिंग यू। ये रट दिए, बोल दिए, कुछ भी हो गया ना, ज्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। आपको एकदम फील्ड एक्सपीरियंस आपको देना ही पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर एचआर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज क्या है, इवेल्युएटिंग क्या है, सो यू हैव टू डू दैट। और केस स्टडी इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल्स है। आप जितना अच्छा केस स्टडीज रिप्रेजेंट कर पाइएगा, लिख पाइएगा, उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, और नंबर के बेहतर आपको स्कोर मिलेगा अच्छा आपका। जब इंटरव्यू होगा तब आप रिप्रेजेंट कर पाइएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द केस स्टडी यू विल गोइंग टू गेट सिलेक्शन। स्टडी रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। जैसे फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल, जो भी बीटेक, सीएससी, एआईएमएल, ट्रिपल ई, ये सब पढ़ाई करते हैं ना, तो इन लोगों को क्या पूछा जाता है, थोड़ी वो एआईएमएल का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रोग्राम बना के दो, नहीं। असाइनमेंट किए हो, इंटर्नशिप किए हो, ऑफलाइन किए हो कि ऑनलाइन किए हो, अगर ऑफलाइन किए हो, ओके, क्या हुआ है, कितना टीम मेंबर्स था, क्या आपने किया है, इसका क्या इवेल्यूट निकल रहा है, ये सब बेस्ड ऑन दिस दे विल गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, दे विल गोइंग टू सिलेक्ट।
क्लियर? यस सर। और मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तन्मय, आप जितना इंटरेस्टिंग देख पाओगे ना, इससे बढ़िया और इसमें इंटरेस्टिंग चीज कुछ हो ही नहीं सकता। नए एवरी डे द डेफिनेशन इज चेंजिंग, एवरी डे द पैटर्न इज चेंजिंग, एवरी डे द प्रेफरेंसेस इज चेंजिंग, एवरी डे द एवरीथिंग इज चेंजिंग, जियोग्राफिक लोकेशन तक एवरी डे चेंज हो जा रहा है। तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है? मार्केटिंग का कोई स्पेसिफिक आप डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, आप कस्टमर को डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। कस्टमर का तो एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। आज मैं ये सामान लेके आ रहा हूँ, कल मुझे वो सामान चाहिए नहीं, मैं दूसरा लेके आ जाऊंगा, उससे परसों तीसरा लेके आ जाऊंगा। तो कस्टमर का जो एक फोकस है वो एक जगह टिका ही नहीं रहता है। तो फिर आप डिस्टिंक्ट इमेज कैसे क्रिएट कीजिएगा? आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए, आप इसका क्या जवाब दीजिएगा तन्मय? कस्टमर का प्रेफरेंसेस एवरी डे चेंज हो रहा है, एवरी डे दे आर चेंजिंग। तो इतना कंपिटिटिव मार्केट में व्हाट यू विल डू टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर? ये आपका सवाल आएगा एमबीए में। मैंने बता दिया आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन दे विल गोइंग टू आस्क यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसलिए मैंने तुमको सारा कुछ बता दिया। एड का प्रेफरेंसेस देखो, टीवी तो देखते होंगे, टीवी का में देखो एड किस तरह का आ रहा है। अभी खाने पीने का सामान बहुत कम ऐड आ रहा है, साबुन का सामान, साबुन का एडवर्टाइज बहुत कम आ रहा है, ठीक है, घमोरिया घमोरिया मारने वाला तेल वगैरह ये सब बहुत कम ऐड आ रहा है। अभी एड का एड देखो किस तरह का ऐड आ रहा है। अभी मैक्सिमम ऐड जो आ रहा है ना तन्मय, देख लो, एजुकेशन रिलेटेड आ रहा है, एजुकेशन रिलेटेड आ रहा है, फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। थोड़ा सा गौर करो इस सब चीज को। तो आपका ये सवाल भी रहेगा, अचानक से एड प्रेफरेंसेस को चेंज क्यों हो रहा है, चेंज क्यों कर रहा है? इसका आंसर भी तैयार रखो। अभी ज्यादा इस तरह का एड का आ रहा है, टीवी खोल के देखो क्या एड आ रहा है, स्मार्टफोन, नया फोन, नया गाड़ी, इस तरह का आ रहा है। फूड प्रोडक्ट्स बहुत कम आ रहा है एड। क्यों ऐसा हो गया? अचानक से 360 डिग्री घूम क्यों गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? क्यों? क्योंकि तब आपका आंसर होगा क्योंकि हम अभी जो सिचुएशन है, अभी जो जेन एक्स जनरेशन है, दे आर नॉट कीप focus on any distinct image or product because every day the product, the preferences, the taste is changing. So based on that, it is very difficult for any marketing managements or any industrialist to keep that mindset of the image that they are trying to create in the mind of customer. That is next to impossible. That is very, very next to impossible. ठीक है, ओके सर। इस तरह का आंसर आपको तैयार रखना पड़ेगा। और ये सब आंसर ना, आई एम टेलिंग यू तन्मय, ये आंसर ना आप किताबी आंसर आप ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा किताब पढ़ा दूंगा, ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकल के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा ना, उतना ही आंसर आप इस चीज का दे पाएंगे। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। अब बोलिएगा सर क्यों नहीं हो सकता है? कोई अगर च्यवनप्राश खरीदने जाएगा तो डाबर का ही लाएगा, ना ही पतंजलि का। अगर डाबर का 20% लाता है, पतंजलि का 10% आता है। कस्टमर प्रेफरेंसेस 50% ऑफ डाबर, 10% ऑफ कस्टमर। तो कैसे नहीं बोलते हैं कि इमेज क्रिएट नहीं होता है, डिस्टिंक्ट इमेज? हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस है सर, तब आपको बोलना पड़ेगा ये सर सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर सच एज डाबर च्यवनप्राश। मुंह से ही निकल जाता है च्यवनप्राश के साथ डाबर। मतलब सोचो, जिन्होंने ये च्यवनप्राश के साथ डाबर ऐड किया है, कितना दिमाग लगा के ऐड को प्रेफरेंस किया है कि हमारे मुंह से जब च्यवनप्राश निकलता है तो डाबर नाम आ ही जाता है। ठीक है, डाबर नाम आ ही जाता है। ये है स्ट्रेटेजीज, ये है टेक्निक। ऐसा नाम बोला है च्यवनप्राश के साथ, ऐसा नाम बोला है, आप खाली च्यवनप्राश बोल ही नहीं सकते, डाबर आएगा ही आएगा। अरे झंडू च्यवनप्राश बहुत कम जन बोलते हैं, पतंजलि च्यवनप्राश उससे कम जन बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज डाबर को दिया जाता है। कि जैसे ही च्यवनप्राश बोलेंगे डाबर बोल के देखो, आएगा। 10 तो कस्टमर के पूछो, भाई कस्टमर च्यवनप्राश कौन सा खाते हो, डाबर ही बोलेगा मुंह से। तो एक्सेप्शनल केस है कन्या, याद रखना। आंसर जब प्रेजेंट करोगे इस तरह से, ठीक है? ओके सर।
तब इसका आंसर का मतलब क्या हुआ, सांप भी नहीं मारा लाठी भी नहीं मारा। जैसे इस तरह का आंसर दोगे ना, सामने वाला जो एचआर जो जब लेगा ना वो सरेंडर हो जाएगा, नहीं ये तो आंसर पूरा ही दे दिया है, मैं इसको बैक क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। जैसे बोलोगे, जैसे इस तरह का रेलिवेंट एग्जाम्पल आप दोगे वो तुरंत समझ जाएगा कि इसका ऊपर और क्वेश्चन नहीं करना पड़ा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल सही दिया कि नहीं हाँ सर तन्मय? एकदम। एकदम। तुम च्यवनप्राश बोल के देखो, मुंह से डावर ही निकलेगा। दिस इज एग्जाम्पल। तो ये कैसा है, किताब में है क्या? नहीं, आपको मार्केट पढ़ना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रेटेजीज को जानना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू द मार्केट, एनालाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन। ओके मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग? पोजीशनिंग का की एलिमेंट्स क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस मतलब सब ऑडियंस नहीं, टारगेट ऑडियंस। What is target audience? The specific group of customers. The specific group of customers. Next है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये फुल फॉर्म आता है तन्मय, ये शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस जो है ना ये सब पूछा जाता है। व्हाट इज यूएसपी, व्हाट इज एमआरपी, व्हाट इज पीएसपी, ये सब पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, इसको याद रखना। तो यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्राइस। जैसे होता है ना, इस सीरियल का यूएसपी बड़ी जबरदस्त है, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। व्हाट इज मेक द प्रोडक्ट डिफरेंट? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब कितना यूनिक है इस प्रोडक्ट में ताकि हम अलग तरीके से सेल कर सकते हैं, अलग, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। देन competitive advantage, why customers should choose your product? competitive advantage का मतलब क्या है? कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों ले, why, what is the reason behind it? नेक्स्ट है ब्रांड इमेज, बहुत बड़ा चीज है। हाउ द प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड, हाउ द प्रोडक्ट इज परसीव्ड, हाउ द प्रोडक्ट इज क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड ब्रांड इमेज। These are the key element of positioning: target audience, unique selling propositions, competitive advantage, brand image। समझ में आया? कोई डाउट है पूछो। नहीं सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज में अब स्ट्रेटेजीज क्या है विथ एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दिया है। पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज help a brand create a unique place in customers' mind. Okay, here are the main types with clear example. Price brand positioning. Number one, price brand positioning. It focus on offering product at a low or premium price. Price brand positioning. It focus on offering products at a low or premium price, पहला। दूसरा, जैसे डीमार्ट, देखो एग्जांपल, डीमार्ट positioning itself as a lower price retailer with affordable daily products. मैम आर यू देयर? मैम शायद नहीं है। मैम आर यू देयर? नहीं है। अच्छा तन्मय, उस दिन तुम्हारे साथ कौन एक स्टूडेंट ज्वाइन होता था, क्या नाम है उसका? नीलांजन। नीलांजन, आज ज्वाइन होना चाहिए था। देखो उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि सर बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन बहुत जगह शॉपिंग मॉल्स ओपन हो जा रहा है, तो ये छोटा मार्केट क्या कर सकता है? तो यही सब स्ट्रेटेजीज अपनाना पड़ेगा, यही सब स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा। मेरे पास टारगेट कस्टमर्स कौन कौन सा है, मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मोर एंड मोर फोकस। क्योंकि रिटेलर्स जो आउटलेट है, डीमार्ट का, ब्लिंकिट का, जूडियोस का या रिलायंस का, ये सब क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं, और जबरदस्त डिस्काउंट देते हैं। जबरदस्त डिस्काउंट देने के बावजूद भी कस्टमर्स फिर भी जाते हैं छोटा मोटा ग्रोसरीज में सामान लाने के लिए। अब उस छोटे मोटे ग्रोसरीज को क्या करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर को होल्ड कर सके? फिर वही काम, आपके पास जितने टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर्स है, आप उनको पहले
टारगेट करके रखिए, उनका टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, बेस्ड ऑन दैट आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आप कस्टमर्स को होल्ड कर सके, अदरवाइज कस्टमर तो जाएगा। और तन्मय, मुझे लगता है कि कितना जन जाता है यार एवरी डे कुछ राशन लाने के लिए, रिलायंस वगैरह जाता है क्या बहुत जन? सर रिलायंस और ये सब में तो बहुत कम मिलेगा, हाँ लोकल शॉप्स में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लोकल शॉप्स में तो हाँ सबसे ज्यादा होता है, वही मैं बोल, निरंजना से रहने से अच्छा होता है। उस दिन सवाल पूछ रहा था, अचानक से लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं करवा नहीं पाया। रिलायंस लेकिन ये सब में सर बहुत ही रेयर जाते हैं, और जिनका थोड़ा इनकम स्टेबिलिटी होता है उस तरह का। हाँ हाँ, तो हाँ, इनकम जिसका स्टेबिलिटी अच्छा है वो फिर जा सकता है। अब तो जैसे सर आपने बात, एक बार कहा था कि जो रोजमर्रा का कमाने वाला है, एक ऑटो ड्राइवर जो है कि दिन का 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो हाँ अपना 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, 100 ग्राम सरसों तेल, ये सब के लिए तो सर वो मार्ट, रिलायंस मार्ट तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात उसको नहीं, लोकल शॉप से ही लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, यस, यही नीलांजन उस दिन समझाना गया था ये एग्जाम्पल, लेकिन बोला था, लेकिन फिर भी दोबारा वो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। उस दिन मैम गुस्सा हो गई थी, इसलिए ये इसका नीलांजन का काम धंधा नहीं है, खाली वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है इस तरह। ये सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, लेकिन वो दोबारा घुमा के मुझसे वही सवाल पूछ रहा था बार बार। यही बात है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और मैक्सिमम जो कस्टमर्स है हमारे देश में, हमारे इंडियन में, ये दिहाड़ी वाला ही ज्यादा है। ऑटो ड्राइवर, टोटो ड्राइवर हुआ, ये हुआ, मिडिल इनकम ग्रुप्स हुआ, हमारे जैसे लोग मिडिल इनकम ग्रुप हुआ। अब हम लोग कितना शॉपिंग मॉल में जाएंगे? हम लोग लोकल ग्रोसरीज पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना? हम 2 किलो चावल, 10 किलो चावल लाने के लिए जाएंगे। अच्छा तन्मय, एक और बात है, आप जितना ज्यादा सामान खरीदिएगा बल्क में, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना? अगर हाँ ऐसा हो, रुपया का क्लिनिक प्लस क्यों निकाल रहा है? 1 रुपया वाला। अच्छा तन्मय, एक बात बताओ, कितना ऐसा कस्टमर्स है जो वो शैम्पू का बड़ा बड़ा बोतल लेके आता है घर में? तन्मय बताओ तो। बहुत कम सर, मैं खुद दो बहुत कम। रुपए का अगर, शैम्पू का पाउच खरीदता हूँ, इस हर अरे महीना अरे मेरे घर में वही अरे, आता है। हाँ हाँ, मेरे घर में भी होता है। अगर मैं 20 रुपया में 20 टो क्लिनिक प्लस शैम्पू लाता हूँ तो कितना निकलता है? एक यूट्यूब वीडियोस वाला ने वीडियो में दिखाया है कि आप 50 रुपया का शैम्पू लेके आइए, और वही दाम, या फिर वही दाम में आप जितने दाम में शैम्पू खरीद रहे हैं, वही दाम में आप 1 रुपया वाला क्लीन प्लस लेके आइए। जब उसने पूरा पत्ता छान के एक बोतल में डाला तो देख रहा है कि जितना मैं ला रहा हूँ बोतल में, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुझे ये सैशे में मिल रहा है। तो वाई शुड आई इन्वेस्ट मनी इन परचेजिंग दैट पर्टिकुलर बॉटल? तो आदमी वही जाएगा ना। मैगी मसाला 1 रुपया में मिल, 2 रुपया में मिल जा रहा है, शैम्पू 1-2 रुपया में मिल रहा है। इतना मतलब जबरदस्त तरह का जो कंपनीज था, ट्रेसमी, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, डव, ये सब 1 रुपया का शैशे निकाल दिए। उनको पता है 10 रुपया का कोलगेट आ रहा है। अरे भाई, अगर सब प्रेफरेंसेस करता शॉपिंग मॉल में, तो ये 10 रुपया का कोलगेट कौन निकालता? उसके साथ एक ब्रश फ्री दे रहा है। अगर 10 रुपया का कोलगेट आप ले रहे हो, उसके साथ एक ब्रश आपको फ्री दे रहा है। इतना होने के बाद 10 रुपया का साबुन मिल रहा है, 1 रुपया का शैम्पू मिल रहा है, तो फिर क्यों जाए? अच्छा, 5 रुपया का हॉर्लिक्स भी मिल रहा है, तन्मय जानते हो? हाँ सर, आता है। मिल रहा। हमें वही सोचना चाहिए, शॉपिंग मॉल्स है, बट वो किनके लिए है? जिनका इनकम थोड़ा सा बढ़िया है, जो मतलब बहुत ज्यादा सामान बल्क में लेके आते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज वाले के लिए नहीं है। हम लोग एक बार दो बार जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग घर के बगल में जो राशन दुकान है, वहीं से हम अपना राशन पानी लेके आएंगे, है ना? क्लियर है? सर यस सर। अच्छा, तब मैं एक काम करता हूँ, सर तो फोन किए थे, जाना पड़ेगा। पोजीशनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। पोजीशनिंग रहने दो, नेक्स्ट क्लास में समझा, आज यहीं तक रहने दो, ठीक है? ठीक है सर। पोजीशनिंग नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। ओके, चलो, हाँ थैंक सर, यू। थैंक यू सर।